Okay. So, yes, very good afternoon to one and all. Welcome to the today's lecture for computer organization. Okay, so today we will be starting with the bias representation. Okay, BIASED. Okay, so what you have to do is I will take one or two examples of the bias representation, and the rest of the representation that you have to uh, okay, now I think it is more visible. Yes. Okay. Just 1 minute. Huh? Okay. So let's start with the biased representation. So in the biased representation, okay, first of all, I will tell you how to calculate the biased representation for any plus number. Okay. And then we will see how to go for the biased representation for the negative number. Okay. So first of all, let us see for plus 5. In the same table, whatever we have done in the last lecture, in the same table you have to make the third column. First column is decimal representation, which starts from plus 8, okay, up to plus 0. Then it goes for minus 0, then minus 1, minus 2, and likewise up to minus 8. Okay. 1 minute. My battery is running low. Just 1 minute. Give me a second. Charging low now. Okay. So plus 5 is nothing but how I am representing the plus 5 in binary. Okay. How I am representing plus 5. So it is 0, 1, 0, 1. Okay. 0, 1, 0, 1. In 0, 1, 0, 1, this is 1. This is 2, this is 4, and this is 8. Suppose if I wanted to represent, now this is the 4-bit number. Am I correct? Okay. If I wanted to represent it into 8-bit number, I can represent the number in 4-bit, in 8-bit, as well as in 16-bit. Okay. So if it is a 8-bit, then I will add 40 here, and then I will add 0101. So this is how I can do the 8-bit representation. If it's a 16-bit, then again add that much, this 40, again one more 40. So this is the 16-bit representation of the plus 5. Okay, this just I have given you for the information purpose. Okay. Now, for this plus 5, I wanted to calculate the bias representation. So, for bias representation, okay, to calculate for any positive number, I have to do minus 8 from it. 5 minus 8. Okay. So, here 5 minus 8. If I wanted to calculate it for plus 4, still I will subtract minus 8. Whatever is the plus number, from that number I have to subtract the minus 4. And here, even though the answer is minus 3, but I will consider only 3. Okay, I will consider only 3. For these 3, I will calculate the binary number now. So it will be 0011. Okay, 0011, and then find out the ones complement for it, for this number. So it will be 1100. That means bias representation of plus 5 is, sorry, this is it 1100. You got it, everyone? Okay. For calculating the bias representation, I have to follow the first step, that is to subtract minus 8. Okay. Second step is whatever is your answer, for the answer find out the Hello, ma'am. its binary value. Yes.
मैम राइट साइड का दिख रहा नहीं है मैम, बोर्ड। आपका जो फोन है ना, उसको आप पोर्ट्रेट है तो उसको लैंडस्केप कीजिए। किया? यस मैम। अभी दिख रहा है? मैम दिख रहा है, पर वो मैम राइट साइड का वो पूरा दिख रहा नहीं है मैम। ये वाला आपको नहीं दिख रहा? यस मैम। ओके, ठीक है। आपने उसको ये किया ना, लैंडस्केप किया ना फोन को? यस मैम। क्योंकि दिखना चाहिए। ओके। हम लेआउट बदलने से सबको हो ये जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है क्या? हम लेआउट बदलने इज से हो एवरीवन जाएगा। गेटिंग द सेम प्रॉब्लम? हम्म, ओके, आई गॉट द आंसर फ्रॉम श्याम। व्हाट अबाउट अदर्स? मैम इज दिख द रहा है बोर्ड ऐसे। इज विजिबल? ओके, दिख रहा है ना, क्योंकि सिर्फ एक कॉर्नर मिसिंग है बोर्ड का फ्रॉम माय एंड, द रेस्ट होल बोर्ड इज विजिबल। ओके। ओके। शायद आपके एंड पे वो पार्टिसिपेंट का लिस्ट भी ऑन रहेगा, तो वो पार्टिसिपेंट का लिस्ट क्लोज कीजिए। ओके। और फिर उसके बाद चैट बॉक्स क्लोज कीजिए और फिर उसको टेढ़ा कीजिए फोन को, अगर सीधा है तो उसको उसको लेटाइए फोन को वहां पे, फिर यू कैन एबल टू सी प्रॉपरली। ओके। क्योंकि इससे ज्यादा सेटिंग मेरे एंड पे नहीं हो सकती। और अभी तो ऐसा है ना कि जैसे मैंने फर्स्ट दिन पे लास्ट टाइम जब हमने बोर्ड यूज किया था तो पोजीशन कुछ अलग थी, पर अभी हमारे घर में पापा है, तो पापा के वजह से थोड़ा सा मुझे मेरा पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है। तो फिर भी मैंने लाइट वाइट लगा के कुछ तो एडजस्टमेंट किया है। सो ऐसा ही है अभी। ओके। आई होप दिस प्रॉब्लम इज नॉट विद द अदर्स। आई एम गेटिंग सब मैसेजेस। स्क्रीन को पिन करो कंप्लीटली, मे बी योर प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये मैंने +5 का निकाला, जैसे अभी हम लोग +4 का निकालते हैं। ठीक है। तो फॉर +4, व्हाट इज +4? 0 1 0 0। ठीक है। 0 1 0 0। ये +4 में से आप -8 कीजिए पहले, तो आपको क्या आंसर आता है? इवन दो द आंसर इज -4, बट यू हैव टू कंसिडर इट +4। तो +4 का क्या आता है यहाँ पे आपने निकाला है? 0 1 0 0। और फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 0 1 1। तो आपका +4 का बायस रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 1। ओके। 1 0 1 1। अभी ये समझ में आ गया आपको? ओके। अभी अभी बोर्ड ठीक है? देखिए जरा। यस मैम, यस मैम। ओके। थोड़ा सा मैंने किया है चेंज। यस, नाउ परफेक्ट। ओके। थैंक यू। थैंक्स टू माय हस्बैंड, ही हैज गिवन द सॉल्यूशन टू मी। ओके। चलो, नाउ you will start with +8 and you will go up to +0। ठीक है। चलो, +8 का बताइए मुझे बाइस रिप्रेजेंटेशन क्या है? व्हाट इज बाइस रिप्रेजेंटेशन फॉर +8? ओके। आपको हर एक का बाइस रिप्रेजेंटेशन वहां पे कैलकुलेट करना है, स्टेप्स लिखना है। बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, हाउ टू कैलकुलेट द बायस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अ, अभी देखिए, ये +8 का एक छोटा सा मैजिक है। +8 में क्या होता है? +8 -8, ये नंबर की क्या प्रॉब्लम है? मैं +8 का निकालती हूँ मेरे यहाँ पे। ठीक है। +8, तो +8 में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 1 0 0 0। ठीक है। +8 से -8 मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। मेरा आंसर आ गया 0। अभी 0 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 0 0 0 0। और फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे,
तो 1 1 1 1 आ गया। तो प्लस एट के लिए मैंने 1 1 1 1 यहाँ पे लिखा है। अभी माइनस एट का करते हैं, सॉरी, माइनस एट का बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पहले ये करना है कंप्लीट, प्लस नंबर्स करने हैं, और फिर उसके बाद में मुझे आपको माइनस का बताना है, ठीक है। प्लस एट कर लिया, अभी उसके बाद प्लस सेवन, प्लस सिक्स, प्लस फाइव तो हमने निकाला है, प्लस फाइव है, प्लस फाइव का क्या है, 1 1 0 0, फिर प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन, प्लस जीरो, माइनस जीरो, ठीक है। चलो डू इट। आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या नंबर है, ठीक है। चलो प्लस सेवन का बताए, प्लस सेवन किसने निकाला है प्लस सेवन का? आई होप आप लोग पेन और बुक लेके बैठे हो। सीओ के लेक्चर के लिए विदाउट पेन बुक नहीं बैठना है, ओके। यस, 1 1 1 0, यस दैट्स करेक्ट, ओके। अभी प्लस सिक्स का निकालेंगे। 1 1 0 1, करेक्ट करेक्ट। अभी प्लस फाइव का हमने निकाला है, प्लस फोर का निकालेंगे, प्लस फोर, यस करेक्ट। हाउ फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। आपकी क्लास मुझे बहुत पसंद आती है, इतने प्रॉम्प्ट आंसर्स मिलते हैं ना। आई एम वेरी ईगर टू टेक द क्लासेस ऑन योर ए डिवीजन। आई रियली एंजॉयड लर्निंग ओवर हियर। पता है जब आपको पढ़ाते तो हम भी पढ़ते हैं, सो दैट्स द ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन द क्लास, ओके। जब क्लास इंटरेक्टिव हो जाती है ना तो बहुत मजा आता है। अभी तो ये ऑनलाइन है, जब हम लोग एक्चुअल में मिलेंगे तब तो और ज्यादा मजा आएगा क्लास में, ठीक है। चलो प्लस थ्री, ओके, प्लस थ्री इज 1 0 1 0, यस ट्रू, 1 0 1 0, ओके। तो अभी आप लोग निकालो आगे के, प्लस टू, 1 0 0 1, करेक्ट। प्लस वन is 1 0 0 0, yes करेक्ट। अभी प्लस जीरो निकालेंगे, प्लस जीरो, यस, 0 1 1 1, दैट्स करेक्ट, ओके। अभी हम लोग ऑल पॉजिटिव नंबर्स कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद में अभी हमें शिफ्ट होना है निगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। निगेटिव नंबर के लिए ये कुछ झंझट ही नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर मुझे निगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है ना तो बहुत ही इजी है। तो अभी मैं क्या करूंगी, निगेटिव में -1 से पहले स्टार्ट करते हैं, -0 का बाद में देखते हैं, ठीक है। -1 से मैं पहले स्टार्ट करूंगी। अभी -1 का मेरा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या है -1 का? अगर मुझे साइन मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, साइन मैग्नीट्यूड 0 0 1, और साइन मैग्नीट्यूड में ये यहाँ पे 1 लिखती हूँ, तो इस 1 का मतलब है निगेटिव नंबर, है या नहीं? ठीक है, ओके। तो अगर मुझे इसका बायस रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो मुझे इस नंबर को सीधा वंस कॉम्प्लीमेंट करना है सिर्फ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0, तो ये हो गया मेरा -1 का रिप्रेजेंटेशन, 0 1 1 0, ठीक है। चलो अभी -2 का लिखते हैं। -2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है मेरा, 0 1 0 1, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 1 0 1, तो -2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 1 0 1,
गॉट इट एवरीवन? आपको सिर्फ उसका साइन मैग्नीट्यूड, साइन रिप्रेजेंटेशन डालना है, और साइन रिप्रेजेंटेशन को आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? बायस रिप्रेजेंटेशन एवरीवन? ओके, चलो गो फॉर -3, -4। ओके, यहाँ पे मैं करती हूँ। गो फॉर -3, -4, -5, -6 लाइकवाइज। ठीक है, अभी आप तो ये कर लोगे -8 तक। अभी हम लोग -0 पे आते हैं। -0 -0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -0, ये तो 1 0 0 0 आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? ओके, तो ये -0 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो ये मेरा 1 0 0 0 आ गया, और उसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करूंगी तो कैसे होगा? 0 1 1 1 और +1, तो 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 एंड 0 1 0। तो फिर से वही नंबर आ गया। ठीक है, टूज रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर मैं -0 करती हूँ तो -8 भी वही आता है और +8 भी वही आता है, इसीलिए -0 का साइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए -0 का साइन रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, बायस रिप्रेजेंटेशन और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है -0 का। ठीक है, +0 का है लेकिन -0 का नहीं है। ओके, यू मे प्लीज रिमेम्बर दिस। ये +8, -8 और 0, जब -0 रिप्रेजेंट करते हैं ना तो -0 का वैल्यू -8 +8 सेम ही आता है, और फिर 8 में कंफ्यूजन हो जाता है। इसके वजह से -0 का साइन रिप्रेजेंट, बाइस रिप्रेजेंटेशन और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का टेबल में उसका वैल्यू नहीं होगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विथ इट एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया सबको? आई होप अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आपने वो माइनस नंबर कर लिए सब बायस रिप्रेजेंटेशन के, -3 -4 -5 सब टेबल बना लिया प्रॉपरली? क्योंकि इसके बाद अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मूव होने वाले हैं, तो जब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो आपको बायस रिप्रेजेंटेशन नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, साइन रिप्रेजेंटेशन नंबर, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर आपको बोला कि चलो -5, एक मिनट, मेरी पेन नहीं चल रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरी पेन खत्म हो गई थी। ओके, सो मैंने दूसरी पेन ले ली है अभी। ओके, चलो अभी हम लोग, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स अभी खत्म हो गए। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर एक्चुअल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे एडिशन। ठीक है, पहले करेंगे एडिशन। तो एक बात रहती है, ठीक है, उसमें when we are performing some addition,
Okay, when we are performing some addition, at that time we required minimum two numbers. Okay, we required minimum two numbers. अभी उसमें एक concept है, one concept is called as the sign number and another concept is called as the unsigned number. ठीक है, तो अगर मैं एडिशन करने के बाद, ओके, after doing the addition, if the addition of the two numbers, okay, if the in result section, okay, after addition, if the operation is positive, result of the operation is positive, okay, and we get a positive number in 2's complement form, ठीक है, which is same as the unsigned integer form, okay, and if the result is negative, okay, then we get the नेगेटिव नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. मुझे शॉर्टकट में आपको क्या बताना है, जब मैं दो नंबर x और y को एडिशन करती हूँ, एडिशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है, और अगर ये दोनों एडिशन का रिजल्ट सपोज निगेटिव आ गया तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर भी निगेटिव ही आएगा. ठीक है, अभी ये सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं आपको इसका ये बताती हूँ. ठीक है, एक वेरिफिकेशन मेथड है. ठीक है, उस वेरिफिकेशन में हमें ये पता चलता है कि मैंने जो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर निकाला है, ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं है. तो उसके वेरिफिकेशन के लिए मैं अभी एक नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालती हूँ. लेट अस टेक +2 नंबर. ठीक है, अभी आप +2 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाले सब लोग. ठीक है, +2 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप अपने बुक पे कीजिए साइड बाय साइड. तो नंबर इज 0 0 1 0. तो इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ. तो इट इज 1 1 0 1 and then add 1 into it. So 1 1 is 0, 0 1 is 1, this one as it is, this one as it is. ठीक है, तो ये आ गया मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर 2. ठीक है, तो अभी ये जो मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर आया है पॉजिटिव नंबर का, ये वाला, तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये नंबर ऐड करो. फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है आपका +0 0 1 0 और ये जो मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट आया है इसको ऐड करो तो 1 1 1 एंड 0. देखते हैं इसका एडिशन 0 आना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं +2 -2 करूंगी तो इसका आंसर तो 0 ही आना चाहिए. तो 0 0 0 1 1 0 कैरी 1 1 0 is 1 and 1 1 is 0 carry 1. Again 0 1 1 1 1 0 carry 1. Now if you forget the carry bit, okay, if you forget or if you ignore this carry bit, what's your answer? Your answer is 0. That means whatever two's complement I have calculated is correct. समझ में आया everyone? This is called as the somewhat verification at our end कि मेरा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है या नहीं आया है. ओके गाइस, आर यू विथ मी? नींद तो नहीं आ रही है ना? आर यू फीलिंग स्लीपी? आर यू फीलिंग स्लीपी? नो ना? I hope you understand all the things. Okay, चलो और एक नंबर का वेरिफिकेशन हम ट्राई करते हैं. ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. अगर किसी को नींद आ भी रही है तो उसकी नींद भाग जाएगी. ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालते हैं. ठीक है, किसका निकालते हैं? लेट अस से +18. ओके, निकालो +18 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो.
1 2 4 8 ओके, आगे भी लगेगा ना मुझे 16 और फिर 32, ये आगे दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, ये हो गया मेरा 8 बिट का। ओके, ये हो गया मेरा 8 बिट का पहला रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में अभी मुझे इसका पहले क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस नंबर का। निकाले वंस कॉम्प्लीमेंट एवरीवन। चलो निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आया वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 1 1 0, फिर 1 1 0 1। Add 1 into it. What's the answer? Add 1 into it. What's the answer? Okay. So the answer is 1 1 0. Carry 1. Then 1 0 is 1. This as it is 0 1 1 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर +18, ठीक है। यानी ये नंबर क्या हो गया मेरा, ओके, ये नंबर हो गया मेरा -18। ओके, तो -18 को अभी +18 से ऐड करते हैं, तो 0 0 0 1 0 0 1 0 +1 1 1 0 1 1 1 0। 0 0 is 0, 1 1 is 0, carry 1, 1 0 is 1, and again 1 1 is 0, carry 1, same 0 carry 1, 1 1 0 carry 1, same 0, same 0, same here again. Here I am getting carry, so ignore this carry. So what's the answer? What's the answer? Answer is 0. Means what? Whatever I am doing is correct. Okay, ये हमने पहला 16 बिट नंबर देखा है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, दैट वेन एवर यू डू, फॉर एग्जाम्पल दिस ये +18 है, ठीक है। +18 नंबर अगर मैं ऐड करती हूँ उसके टूज कॉम्प्लीमेंट से, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ओके, आंसर इज ऑलवेज 0। ओके, तो अभी अभी मुझे क्या करना था, ओके, अभी इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, -18 नंबर लेते हैं, उसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका आंसर 0 आता है या नहीं, ये चेक करो आप, ठीक है। ट्राई फॉर -18, टेक -18, ठीक है, फाइंड इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। -18 का टूज कॉम्प्लीमेंट करिए और उसमें वो -18 को ऐड कीजिए उसके टूज कॉम्प्लीमेंट में एंड सी व्हाट्स द आंसर, ठीक है। कैन यू एबल टू डू इट? अभी आप बोलोगे मुझे -18 कैसे रिप्रेजेंट करना है, -18 सिंपल है, -18, ठीक है। ये जो आपका +18 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है -18 रिप्रेजेंट करने में, बताओ -18 कैसे रिप्रेजेंट करना है, शैल आई टेल यू?
ओके, या फिर आपका हो भी गया आंसर, यू आर ऑल सुपरमैन, सो आप तो जल्दी जल्दी करोगे ही, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, -18 को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट रिमेम्बर, ये जो आपका साइन बिट है, एमएसबी बिट, यहाँ पे आपको अगर आप 1 लिखोगे तो ये हो गया आपका, ये देखिए मैंने ये ऊपर का नंबर एज इट इज वैसे ही लिखा है, ये हो गया मेरा -18 का रिप्रेजेंटेशन। ये जो साइन बिट है, ये अगर आपका 1 है तो आपका नंबर क्या हो गया, निगेटिव, और ये नंबर अगर आपका 0 है तो आपका नंबर हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये साइड एमएसबी बिट आपका 0 है तो दिस इज +18, और ये हो गया मेरा -18, ठीक है। तो -18 का 18 को फाइंड आउट इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट and tell me the answer whether you are getting 0 or not. If you are getting 0, that means whatever method you are following is correct. Okay, okay, राज का हो गया, very good, सूरज का भी हो गया, yes, श्याम, okay, okay, I'm getting all of the answers. रजनीश, सिर्फ डन करने से नहीं चलेगा, आंसर यस 0 आया है या नहीं आया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay. Yes. Very good. That means whatever you are following is correct. Okay. Okay. अभी मुझे आपको सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे I would like to focus you all on this particular माइन्यूट छोटा सा जो है, यहाँ पे देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है, ठीक है, ये जब मैंने ये ऑपरेशन किया एट दैट टाइम यहाँ पे ये कैरी बिट जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट यूनिट वी हैव सीन दैट द ALU is actually using some of the control signals. Okay, ALU is using some of the control signals. So here when carry will be get generated, no, at that time the ALU must generate the control signal to say the CPU that they should ignore this particular carry and they should not use this carry in the further attempts to calculate the things. Okay, so ये बात आपको मुझे बतानी थी कि what happens to this carry. Okay, this carry will be fully get ignored by the ALU while calculating or while sending the result to the CPU. So when अगर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया बाइनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, at that time whatever carry will be get generate in your output, there will be no carry. Okay, there will be no carry, so there will be only a result of 8-bit number which is 0000. Okay, you got it all of you up to this point? Any problem up to this point? Any problem? कुछ प्रॉब्लम No, है? ma'am. Okay, चलो, now we will actually move for the addition of the two numbers. ठीक है, when I am doing addition of the two numbers, it's not always necessary that my two numbers must be the negative or my two numbers must be only positive numbers. So one of the number can be positive, one of the number can be negative. So from that numbers you need to find out the answers. ठीक है, you need to find out the answer. अभी for doing addition all of you know the table. मैंने आपको टेबल ऑलरेडी बता दिया है. What is our table for addition? It is 0 0 0. There will be no carry. ठीक है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आता है. 0 1 में यहाँ पे आंसर इज 1, स्टिल नो कैरी. 1 0 में आंसर इज 1, still no carry, and 1 1 is 0 and it generates the carry bit. ये आपका A और ये B और ये आपका रिजल्ट. ठीक है, ये याद है ना आपको? एडिशन करने के लिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए. अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आपको एडिशन नहीं आएगा. ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल.
Okay, let's take the first example. So your first number is 1001 and second number is 0101. Now, first of all, okay, before going for the addition, आपको मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ एंड देन रेस्ट यू हैव टू सॉल्व. सो दिस इज योर नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एंड हियर यू नीड टू ऐड दिस टू नंबर्स. ओके, तो एडिशन के लिए मैं क्या करूंगी, 1001 प्लस 0101. ठीक है, अभी यहाँ पे एडिशन करने से पहले आई विल फाइंड आउट विच इज दिस नंबर. आई विल फाइंड आउट विच इज दिस नंबर. तो बताएं मुझे ये कौन सा नंबर है. पहले ये बताओ निगेटिव है या पॉजिटिव, वेदर इट्स निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर. निगेटिव, करेक्ट. और अभी बताएं कौन सा नंबर है. -1. एक बार अपना टेबल देखिए, जो टेबल आपने ड्रॉ किया है पीछे, जिसमें टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन नंबर है, सब नंबर है, वो वहां पे देखिए एक बार आपने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देखिए. हर टाइम आपको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नहीं देखना है, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रेफर करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. ठीक है, so 1001 is देखिए क्या है, इट्स द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -7. यस, ओके, आपको यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट की टेबल रेफर करनी है. फिर वहां पे नीचे देखिए 0101. सो 0101 इज +5. टूज कॉम्प्लीमेंट टेबल में देखिए, ओके, +5. So -7 and +5. What is the answer? आंसर आपका क्या आना चाहिए, -2. ठीक है, -7 + 5 इज -2. अभी देखिए आपका आंसर -2 आता है या नहीं एडिशन में. 110 कैरी 1, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, 011 एंड ये 1 एज इट इज. तो यहाँ पे ये 1 नंबर आ गया, तो इट शोज दैट दिस इज द नेगेटिव नंबर. तो अभी आप फिर से टेबल में देखिए 1110. तो 1110 क्या है आपका, इज -2. ओके, इट इज -2. यहाँ पे आपको टूज कॉम्प्लीमेंट का नंबर टेबल यहाँ पे देखना है. सो आंसर इज -2. समझ में आ गया एडिशन. ठीक है, अभी मैं आपको सेकंड एग्जांपल देती हूँ. ये है आपका सेकंड एग्जांपल. चलिए इसका एडिशन फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताए फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1100. 1100 कौन सा नंबर है ये, निश्चय. इट्स यहाँ पे देखिए, निश्चय यहाँ पे +1 है, 1 साइन है यहाँ पे, यानी इट्स अ निगेटिव नंबर. ओके, सो इट्स अ -4. ठीक है, एंड सेकंड वन इज +4. तो व्हाट शुड बी द आंसर, 0. इट्स नॉट 0, it's 0000. Okay, one single 0 is wrong, it's a 4 times 0. Okay, are you getting, all of you? Okay, I hope you are getting it. चलो अभी मैं आपको और भी सिंपल एग्जांपल देती हूँ.
Okay, one more example. चलो बताएं all of you. 0011 it's, जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो हमें सिंपल कई बार समझ में नहीं आता. यस करेक्ट, इट्स 3. एंड 0100 it's 4. Okay, so 3 plus 4 is 7. 3 plus 4 is 7. Okay, अभी मैं आपको दूंगी होमवर्क. होमवर्क में पहला क्वेश्चन है 1100 एंड 1111, और आपका सेकंड वन है 0101 एंड 0100, and third one is 1001 and 1010. ये तीन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. ओके, यस, आपका इसका आंसर आता है 0111 यानी 7. ठीक है, चलो. सो वी आर डन फॉर द टूडेज लेक्चर. ठीक है, वी हैव डन द एडिशन टुडे and I hope you have enjoyed the lecture. Okay, any problem in today's lecture? Any problem? Okay, chalo then, you mark your attendance in the chat box. Okay, okay, in tomorrow's lecture you must be ready with the answers for these 3 problem statements. Okay, if you are done with the attendance, then you can leave the meeting. Thank you so much. Everyone please mark your attendance. Okay, okay, I hope everyone has marked the attendance. Okay, so now I am leaving the meeting. Thank you so much.